ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਪੀਟੀਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਫਾਈਲ ਬਣੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਇਲਸ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ 6 ਵਾਲਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈंट्स ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ कि ਕੀ है आइल्स रियलिटी टेस्ट। जी, आइल्स रियलिटी टेस्ट इवन के ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हज़ारों बच्चे इस आइल्स रियलिटी टेस्ट को अटेम्प्ट करके अब्रॉड बाहर जा चुके हैं, अपना टाइम बचा के, अपने पैसे बचा के। होता क्या था कि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की है, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, 80-90% बच्चा ऐसा होता है जो डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाता, और बच्चा पंचवर्षीय योजना बना लेता है कि वो बार बार अटैम्प्ट देता है और उसका स्कोर नहीं आ पाता। इवन के मॉक टेस्ट में सैटरडे को जो मॉक टेस्ट होता है उसमें अच्छा स्कोर, चंगा स्कोर लेता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में जब जाता है तो वो 0 हो जाता है। तो बच्चे के 5-5.5 बैंड के लिए लाखों रुपए खराब हो चुके हैं। 13,000 समथिंग फीस है जो फाइनल एग्जाम की फीस होती है। तो बच्चा इवन के सेंटर को भी पैसे देता है ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद वो फाइनल एग्जाम की फीस देता है 13,000 रुपये प्लस, और उसके बाद बच्चे को 13 दिन बाद रिजल्ट आता है कि उसके 5 बैंड आए, 5.5 बैंड आए। तो उसके पीछे रीजन एक तो बच्चे को फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सारी चीजें खा लेती है। फाइनल एग्जाम ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज आ गई है, तो बच्चा जब वहां परफॉर्म कर ही नहीं पाता। सेकेंडली उसकी तैयारी नहीं हो पाती, चौथा उसकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। तो हर एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ होती है और वो डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाता। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए वेस्टर्न ओवरसीज ने पिछले 7-8 महीने से स्टार्ट किया है आइल्स रियलिटी टेस्ट। आइल्स रियलिटी टेस्ट है क्या कि जैसे आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल फाइनल एग्जाम जो लेता है, जैसे वो वेन्यू बुक करता है, सेम हम वेन्यू बुक करते हैं। मतलब जहाँ पे आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल सेंटर्स हैं, मतलब चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो अम्बाला है, चाहे करनाल है, जलंधर है, चाहे फिर वो देहरादून है, या किसी भी पंजाब के, हरियाणा के या साउथ नॉर्थ के किसी भी एरिया में, जैसे वेस्ट अपना क्या नाम है आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम देता है, सेम वैसे ही हम वेन्यू बुक करते हैं। वेन्यू बुक करके बच्चों को हम सेम फील कराते हैं जो बच्चे को फाइनल एग्जाम में जैसा होता है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि फाइनल एग्जाम में किस तरीके से उसकी लिसनिंग होनी है, किस तरीके से रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीजें होनी माहौल जो बिल्कुल, तो माहौल का बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम बच्चों को सेम माहौल प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे की फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस ये सारी रिमूव हो जाती है। सेम पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे मार्किंग होती है बच्चों की। तो बच्चों का जो स्कोर है, जो रियलिटी टेस्ट में स्कोर होता है, फाइनल एग्जाम में वही आता है। हज़ारों बच्चे हैं जो बच्चे हमें कॉल करते हैं, ये उनकी अपनी वीडियोस भेजते हैं, फेसबुक पे बोलते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि जी मज़ा आ गया, आपने जो हमें स्कोर दिया वही स्कोर हमारे फाइनल एग्जाम में आता है। जी। एक लड़की है स्नेहराज, देहरादून से लड़की है। इसने पेपर दिया देहरादून में आइल्स रियलिटी टेस्ट वेस्टर्न ओवरसीज में। हमने उसका 4 दिन बाद, पेपर देने के 4 दिन बाद उसका, या 4-5 दिन के बाद हमने उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो उस लड़की ने 7 स्कोर किया, 7 बैंड। उसने क्या ज़बरदस्त तरीके से वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में बोला। वो बोलती है कि यार मज़ा आ गया, जो चीज़ें आपने बताई
वही मेरे साथ हुआ और फाइनली मैंने 7 बैंड ही स्कोर लिए। मतलब एक तरह से जो फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में जो चीजें हैं वही हम बच्चों को पहले मिरर दिखा देते हैं, पेरेंट्स को बता देते हैं 13,000 रुपये खराब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 699 700 रुपये बच्चे को पे करने हैं। IELTSrealitytest.com ये वेबसाइट है वेस्टर्न ओवरसीज का एक सिस्टर कंसर्न, www.IELTSrealitytest.com। उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ हमारे आने वाले टाइम में IELTS रियलिटी टेस्ट हो रहे हैं। वहीं पे पेमेंट गेटवे है, फॉर्म भरे, वहीं से ऑनलाइन आप पेमेंट करें, आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। आप फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले IELTS रियलिटी टेस्ट में बैठे, आपको बताया जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, अभी 5 बैंड पे हैं, 5.5 बैंड पे हैं, 6 बैंड पे हैं, 8 बैंड पे हैं, 7 बैंड पे, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। तो एक तरह से फाइनल एग्जाम से पहले ये रिहर्सल मैच है। तो जो बच्चा ये पेपर देता है उस बच्चे का एग्जैक्ट वही स्कोर आता है। सेकेंडली हमारे पास IDP ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेनर है जो ये टेस्ट लेते हैं, इवन के एक आध बार फॉरनर भी होते हैं। तो वो जो एक्चुअल मार्किंग है वो सेम हमारी मार्किंग है जो IDP और ब्रिटिश काउंसिल के पैरामीटर्स हैं। तो सारी की सारी चीजें बच्चों को जब मिलती है तो बच्चों को पता लगता है एग्जैक्टली वो कहाँ स्टैंड करते हैं। एक्चुअल मिरर, बिल्कुल एक्चुअल उनको कि भी आपका स्टैंड कहाँ है, बिल्कुल कितनी तैयारी है जी, आपकी कितनी तैयारी है, आपको अभी पैसे खर्चने हैं या नहीं खर्चने, अभी आपने फाइनल एग्जाम देना है या नहीं देना है, अभी नहीं देना तो कितनी रिक्वायरमेंट है, 5.5 बैंड आए तो क्यों आए, 6 बैंड आए तो क्यों आए, बिल्कुल लिसनिंग में कम क्यों रह गए, राइटिंग में कम क्यों है, किन किन चीजों की आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें वेस्टर्न ओवरसीज IELTS रियलिटी टेस्ट जो एग्जाम लेता है उसके बाद बच्चे को जब उसका एग्जाम, जब वो उसका पेपर जो है, जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो रिजल्ट के साथ साथ बच्चों को बताता भी कि वो ऐसे किस तरीके से अपने को इंप्रूव कर सकते हैं और उसके बैंड स्कोर कम क्यों आए और किस तरीके से वो आगे अपनी ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो रिमूव कर सकते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹੋਮਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ IELTS ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਇਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ 21 ਦਸੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ www.IELTSrealitytest.com ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ IELTS ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾइन प्रोसेस ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ स्टूडेंट्स ਨੂੰ हर एक चीज ਦਾ सेम वही एक बच्चा दिमाग में जब सोचता है ना कि मैंने IELTS देना है तो IELTS रियलिटी टेस्ट पे जाके उसको वही फीलिंग मिलेगी। IELTSrealitytest.com से स्टार्ट होके और फाइनल एग्जाम में बैठने तक और एग्जाम में बैठने के बाद रिजल्ट तक, मतलब सेम वही फीलिंग्स है जो बच्चों को फाइनल एग्जाम में मिलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कोई स्टूडेंट अपीयर करता है IELTS एग्जाम ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ जानना चाहूँगी कि ਤੁਸੀਂ किन्ने टाइम बाद जो IELTS रियलिटी टेस्ट करवाते हो? देखिए महीने में ये 4 बार, कई बार 8 बार भी होते हैं। तो आप IELTSrealitytest.com पे जाके देख सकते हैं और पीछे तकरीबन मोर देन मतलब महीने में हमने 4 भी किए हैं, हफ्ते में महीने में 5 भी किए हैं और महीने में 8 भी किए हैं। तो ये आप IELTSrealitytest.com की वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी 21 दिसंबर को ये होने वाला, अभी थोड़े दिन पहले पटियाला भी हुआ, उससे पहले करनाल भी हुआ है, उससे पहले श्री गंगानगर भी हुआ है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमारे ये इवेंट्स चलते रहते हैं। तो जब ये अभी अपकमिंग है वो 21 दिसंबर को IELTS रियलिटी टेस्ट होटल होमटल आपका क्या नाम है चंडीगढ़ में होने जा रहे हैं। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप चाहे तो IELTSrealitytest.com पे जाइए और वहाँ से ऑनलाइन लॉगिन करिए या फिर वेस्टर्न ओवरसीज की जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप उसमें जाके भी आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9115-017-017 उस पर कॉल करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका मैं आपको ये एश्योर करना चाहूँगा, खासकर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज रहेगा कि अगर आप भी अपने बच्चे को टाइम रहते विदेश में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम रहते IELTS या PT करनी होती है जो रिक्वायरमेंट है। तो ये IELTS रियलिटी टेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो टाइम रहते विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनटेक आपका वेट नहीं करेगा। आपका स्कोर आया
तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इनटेक आपका वेट नहीं करेगा। तो आपका बेटा कहाँ स्टैंड करता है, आपकी बेटी कहाँ स्टैंड करती है, 13,250 रुपये खर्च ना करके सिर्फ 699 आपने पे करना है, और सेम इन्वायरमेंट में आपने बैठना है जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल का फाइनल एग्जाम होता है। एक सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्टिमोनियल्स आते हैं जो बताते हैं, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेपर दे रखा होता है, वो बोलते हैं कि फाइनल एग्जाम जो आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल का होता है इतना स्ट्रिक्ट तो वो भी नहीं होता, इतना मतलब सिस्टमेटिक तो वो भी नहीं होता जितना सिस्टमेटिक हमारा होता है। तो एक तरीके से बच्चे को जो फाइनल एग्जाम है उससे बेस्ट इन्वायरमेंट यहाँ दिया जाता है ताकि बच्चा अपना अप टू मार्क रहे और बच्चे को पता रहे कि एक्चुअल मिरर ये है, और इस तरीके से मैं अगर करूँगा, अटेम्प्ट करूँगा तो मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच सकता हूँ डिजायर्ड स्कोर लेकर। जी बिल्कुल, कई बार ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਸ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 699 700 ਰੁਪਏ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ स्टैंड कर रहा है। एक और भी बात है, जो बच्चे ये जो मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट में वो सीरियसनेस नहीं आती। हाँ बिल्कुल। सेम सेंटर्स में जहां आप पढ़ रहे हैं, जो फैकल्टी आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ा रही है वही आपका टेस्ट ले रही है, ठीक है, तो वो ना तो वहाँ सीरियसनेस होता, ना वहाँ सिस्टम होता, ना वहाँ पे कोई चीज़ें वो डिसिप्लिन की तरीके से डिसिप्लिन से होता। तो बच्चा क्या करता है कि चाहे तो उसका फैकल्टी भी, इधर से फैकल्टी भी अपने क्या नाम अपने को दिखाने के लिए अपने ओनर्स के सामने वो बच्चे को अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक स्कोर दे देती हैं। बच्चा 5 बैंड पे है, बच्चे को 6 बैंड दे दिए ताकि बच्चे भी मोटिवेट हो रहे और बच्चे वहाँ पे अपनी मतलब कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहे। तो फाइनल जो मॉक टेस्ट में जो चीज़ें होती हैं वो गलत हैं। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।